Good morning, students. Today we are going to start the new chapter, that is the proposal of the book First Flight. Okay, see, this is chapter 11 and it is a kind of drama, and this is written by Anton Chekhov. Okay, so before today I will give you just an introduction and the brief summary of this chapter. See, this is the in this chapter the word proposal. See, the title is the proposal. The proposal means there are different meaning of proposal. Okay, either the proposal of any plan or any scheme, either it can be the action or it can be the proposal of marriage. But this drama is based on the proposal of a marriage. So let's begin the introduction. The proposal is when you will see there is something written in a box, a Russian wedding. So let's read this first. Do you know anything about a Russian marriage ceremony? इसमें इसलिए बताया गया रशियन मैरिज सेरेमनी के बारे में क्योंकि रशियन मैरिज सेरेमनी जो होती है वो थोड़ी उनका जब वे होता है मैरिज सेरेमनी का, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट. तो वो इस चीज़ में बताया गया है और इस जो बॉक्स में है वो दैट इज़ द आर्टिकल अबाउट अ रशियन वेडिंग. कि रशियन वेडिंग कैसी होती है उसके बारे में आर्टिकल लिखा गया. सो लेट्स रीड. Preparations for a Russian wedding. A Russian wedding is very simple. The planning only includes arranging for rings, bride's dress, cars, and a reception. Earlier, the bride's family paid for the reception, but nowadays, brides and groom's families usually shares expenses. A Russian wedding lasts for 2 days. Some wedding last as long as a week, and the occasion becomes something to remember for years. The necessary part of the wedding ceremony is a wedding procession of several cars. The best friends of the groom, bride meet before the wedding a few times, make posters, write speeches and organize contests. When the groom arrives to fetch the bride for the registration, he has to fight to get her. Russians usually live in apartments in tall buildings, and the groom has to climb several stairs to reach his bride. But at each landing, he must answer a question to be allowed to go up. The bride's friends ask difficult questions, sometimes about the bride, sometimes just difficult riddles, and the groom must answer with the help of his friends. For example, he may be shown a few photos of baby girls and he must say which one his bride is. If he gets wrong, he must pay cash to move ahead. See, in this article, the writer has written the ceremony, wedding ceremony of Russians. कि Russians जो हैं वो weddings कैसे arrange करते हैं. बहुत से रशियंस के यहाँ जो वेडिंग्स होती हैं वो लास्ट 2 डेज़ की ही होती हैं, और बहुत से रशियंस जो होते हैं जो थोड़े रिच बिलोंग करते हैं, रिच फैमिली से, वो उनकी सेरेमनीज़ 1 हफ्ते तक चलती हैं. और इनकी प्लानिंग जो होती है शादी की वो बड़ी सिंपल होती है. जो ज़्यादा फोकस करते हैं रशियंस, जो जिस पे ज़्यादा फोकस करते हैं शादी में, वो मेन होता है रिंग्स, ब्राइड्स की ड्रेस, कार्ड्स और रिसेप्शन कैसे हो. पहले होता था कि ब्राइड फैमिली जो होती, दुल्हन की जो फैमिली होती थी वही रिसेप्शन का सारा खर्चा उठाती थी, लेकिन अब ब्राइड और ग्रूम दोनों मिलके शेयर करते हैं. और रशियन फैमिलीज़ जो होती हैं उनके
सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट वेडिंग का जो होता है वो होता है बहुत सारे कार्स। जो कार आती हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब द पॉइंट विच टू बी नोटेड, जो कि सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली बात होती है और जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव थिंग जो होती है उनकी शादी में वो सबसे ज़्यादा होती है। बहुत सारी जो कार आती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, नेसेसरी पार्ट होता है। और जो ग्रूम्स के फ्रेंड और जो ब्राइड के फ्रेंड्स होते हैं, मतलब दूल्हा दुल्हन के फ्रेंड्स शादी से पहले बहुत बार मिलते हैं और बहुत सारे स्पीचेस, कॉन्टेस्ट, बहुत सारा सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कुछ ना कुछ प्रिपरेशंस, कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं। और जब दूल्हा दुल्हन से मिलने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने जाता है तो उसको इजीली दुल्हन से नहीं मिलने दिया जाता है। उसको क्या किया जाता है, बहुत ऊंची बिल्डिंग पे दुल्हन को सबसे टॉप पे रखा जाता है और दूल्हे को उससे मिलने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। कैसे स्ट्रगल? हर स्टेयर पे, हर कदम पे उससे दुल्हन की फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस करती हैं और उसको उसका हर तरह से आंसर देना पड़ता है ताकि वो ही कैन मीट द ब्राइड। और अगर किसी तरह से कोई आंसर गलत होता है तो उसको उसके लिए कैश पेमेंट करना पड़ता है। आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन, द न्यूली मैरिड कपल लीव्स द गेस्ट फॉर अ टूर ऑफ द सिटी साइट्स। After 2 or 3 hours of the city tour, the couple arrives at the reception. The couple sits at a specially arranged table with their family, friends, and invited guests. The reception starts with toast to the couple. A wedding toast is a custom where a close friend or relative of the groom or the bride say a few words to wish the couple. Then everyone raises their glass of wine and drink it up at the same moment. The groom is then asked to kiss the bride. After a few toasts, people start eating and drinking and generally have fun. After some time, the bride gets stolen. She disappears, and when the groom starts looking for her, he is asked to pay a fee. Usually, it is his friends who steal the bride. Then there are the bride's friends, they steal the bride's shoe. The groom must pay money for the shoe too. The guests enjoy watching these tussles and continue partying. अब जब ग्रूम जो होता है वो जब ब्राइड से मिल लेता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद से न्यूली मैरिड कपल को कुछ घंटों के लिए अलग कहीं दूर थोड़ा टूर के लिए, सिटी टूर के लिए भेज दिया जाता है। और 2-3 घंटे बाद जब वो वापस आते हैं तो उनके लिए स्पेशल रिसेप्शन का अरेंजमेंट किया जाता है। स्पेशल टेबल लगता है जहाँ पे वो लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, जहाँ पे फैमिली का हर मेंबर उनके लिए कुछ ना कुछ कहता है और उसके बाद से सारे मेंबर्स सब एक साथ ड्रिंक करते हैं और खाना खाते हैं। और उसके उसी बीच में जो ग्रूम के फ्रेंड्स होते हैं वो ब्राइड को क्या कर लेते हैं, स्टील कर लेते हैं, मीन्स कहीं छुपा देते हैं। फिर ग्रूम को उसको ढूंढना पड़ता है और ढूंढने के लिए उसको बोलना पड़ता है कि वो जो भी उसकी ब्राइड को लेके आएगा वो उसको पे करेगा, मतलब कुछ कैश देगा। और इसी बीच जो ब्राइड्स की फ्रेंड होती हैं वो ग्रूम के शूज़ को छुपा देती हैं, जो कि जनरली इंडियन ट्रेडिशन में भी है कि जो लड़की की फ्रेंड्स या लड़की की सिस्टर्स होती हैं, दुल्हन की जो सिस्टर्स होती हैं, वो जो दूल्हा होता है उसके शूज़ को छुपा देती हैं, जिसके लिए जो दूल्हा होता है, जो ग्रूम होता है, वो उनको कुछ पेमेंट करता है। ये सारी जो सेरेमनी होती है वो रशियंस में भी होती है, लेकिन रशियंस में थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, कुछ अलग तरीके से होता है। और ये सारे प्रोसीजर्स जो गेस्ट आते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो सब इसको एंजॉय करते हैं। नाउ let me give you the introduction. See, the proposal is one act play. This is the one act play that begins with a young man. In this play there is a young man जिसका नाम लोमोव है और वो मैरिज प्रपोजल लेके जाता है अपने नेबर की डॉटर के पास। मतलब जो लोमोव करके जो यहाँ पे कैरेक्टर है उसको अपने पड़ोस की लड़की, जो पड़ोसी जो है उनकी लड़की से शादी करना रहता है और वो प्रपोजल लेके उनके पास जाता है। बिफोर
he could actually convey it to the girl, they enter into the argument about oxen meadows. अब जैसे ही वो प्रपोजल लेके जाता है तो उससे पहले ही वो लोग कुछ आर्ग्यूमेंट में फंस जाते हैं, यानी कुछ आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं। और वो क्या रहता है, ऑक्सिन मीडोज, यानी जो बैलों का जो मेड़ा होता है जहाँ पे बैल रखे रहते हैं उसमें बहस हो जाती है। और जो एक कैरेक्टर है इसमें चुबुकोव, जो कि लेडी का फादर है, वो भी इस डिस्कशन में इन्वॉल्व होता है। और इस डिस्कशन के एंड होते होते लास्ट में क्या आ जाता है, अब आर्ग्यूमेंट होने लगता है डॉग्स के ऊपर कि इसमें किसके डॉग बेटर है, मीन्स दोनों के पास डॉग्स रहते हैं। अब ये आर्ग्यूमेंट होता है कि किसका डॉग ज़्यादा बेटर है। और इसी बीच में जो लोमोव है वो शादी का प्रपोजल रखना भूल जाता है। और क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली वो शादी का प्रपोजल रखना भूल जाता है और ये जो बहस होती है वो लड़ाई में शुरू हो जाती है। यानी अब दोनों फैमिलीज़ के बीच में क्या हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है, जो कि आर्ग्यूमेंट था और वो अब लड़ाई में बदल जाता है। ये इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, यानी दिस इज द ओवरऑल इंट्रोडक्शन, मीन्स देयर इज अ कैरेक्टर हुज नेम इज लूमोव। लोमोव है जो कि एक यंग मैन है और वो चाहता है उसके पड़ोस में जो लड़की रहती है उससे शादी करना चाहता है। और वो ये चाहता है कि वो उसके फादर से शादी की बात करे। और जब वो प्रपोजल लेके उसके फादर के पास जाता है, उसके फादर का नाम रहता है चुबुकोव, किसके, लड़की के फादर का नाम रहता है चुबुकोव, उससे मिलने जाता है शादी का प्रपोजल लेके। जैसे ही वो मिलने जाता है तो वहाँ पे वो प्रपोजल तो नहीं रख पाता है, लेकिन उन लोगों की आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है ऑक्सिन मीडोज के ऊपर। ऑक्सिन मीडोज यानी जो बैलों का मेड़ होता है, जहाँ पे बैल रखे खड़े होते हैं, जो ओनर्स होते हैं जो जहाँ पे बैल रखते हैं, जो मेड़ होती है, उनके बारे में उनका आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। और ये आर्ग्यूमेंट ख़त्म होते होते नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है और वो रहता है कि किसका डॉग ज़्यादा बेटर है। यानी बोथ द फैमिली हैव डॉग्स और वो दोनों फैमिली ऑक्सिन मीडोज के बारे में आर्ग्यूमेंट करते करते डॉग के ऊपर आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। और जब दोनों फैमिलीज़ आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, इसी बीच में जो लोमोव है, जो यंग मैन है, जो प्रपोजल लेके जाता है चुबुकोव के पास उसकी लड़की से शादी करने के लिए, वो प्रपोजल रखना भूल जाता है। और क्या होता है और ये जो बहस रहती है वो क्या हो जाती है, अब लड़ाई में बदल जाती है। यानी दोनों एक दूसरे से क्वारल करने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। अब अगर हम इसका समरी देखें तो इस जो पूरा प्ले 1 एक्ट प्ले है, यानी जो पूरा प्ले है, जो पूरा ड्रामा है, उसकी जो जिस्ट अगर हम देखें तो वो क्या है कि जैसा आप जानते हैं कि जो एक्ट होता है, जो ड्रामा होता है, वो स्टेज पे परफॉर्म होता है। तो ये यहाँ पे जब किसी भी एक्ट या किसी भी ड्रामा को जब बुक्स में लिखा जाता है या कोई राइटर किसी बुक या नॉवेल में जब उस एक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो वो ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि रीडर कैन फील दैट ही और शी इज़ रीडिंग और फीलिंग दैट एक्ट। उसको जो रीडर है उसको ऐसा फील होना चाहिए कि वो एक्ट उसको फील कर सके, ऐसा लगे कि वो स्टेज पे देख रहा है। तो उस तरह से राइटर उसको बुक में या नॉवेल पे रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे भी अगर हम समरी देखें तो सबसे पहला होता है द कर्टन रेज। कभी भी कोई भी एक्ट अगर आप देखें तो उसमें सबसे पहले रहता है द कर्टन रेज, यानी स्टेज पे सबसे पहले क्या होता है, पर्दा उठता है। तो जैसे ही पर्दा उठता है इस एक्ट में, सबसे पहले एंट्री किसकी होती है, लूमोव की। कौन है लूमोव? द यंग मैन, जो कि चुबुकोव का नेबर है और जो चुबुकोव की लड़की से शादी करना चाहता है।
उसकी सबसे पहले एंट्री होती है और वो पूरे अपने इवनिंग अटायर में सामने आता है। इवनिंग अटायर यानी इवनिंग गाउन, इवनिंग ड्रेस जो भी है वो पूरा फॉर्मल में नहीं रहता, इवनिंग गाउन में, इवनिंग अटायर में सामने स्टेज के उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और फिर आगे स्टोरी शुरू होती है। क्या होता है कि एज चुबुकोव saw him, he was surprised. He surprised to see him well dressed and asked him the occasion. Means वो इवनिंग ड्रेस में है, इवनिंग पूरे अटायर में है। इवनिंग अटायर ऐसा नहीं कि वो घर के अटायर में है। इवनिंग अटायर यानी किसी ओकेजन में शाम को जो ड्रेस पहनी जाती है उस ड्रेस में कौन है, लोमोव है। और जैसे ही चुबुकोव उसको देखता है तो वो उसको देख के शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या कोई ओकेजन है। तो लोमोव रिवील्स दैट ही हैड कम टू मेक अ रिक्वेस्ट। वो ऐसा शो करता है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ एक रिक्वेस्ट लेके। देन व्हाट हैपेंड, Chubukov anticipates that he must have come to ask for money which he does not intend on going. अब जब इस पूरे स्टोरी में जैसे ही लोमोव चुबुकोव लोमोव को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है कि वो इतने वेल ड्रेस्ड क्यों है, क्या किसी ओकेजन में कहीं जा रहा है। तो लोमोव उसको बोलता है कि मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। तो चुबुकोव को ऐसा लगता है शायद ये मुझसे पैसा मांगने आया है, तो वो बोलता है कि मैं देने के मूड में नहीं हूँ। तो फिर लोमोव क्या बोलता है, ऑन बीइंग रिवील्ड दैट लोमोव हैड कम टू आस्क फॉर चुबुकोव्स डॉटर नटालियाज हैंड इन मैरिज। अब यहाँ पे चुबुकोव की जो बेटी है उसका नाम क्या है, नटालिया, और वो बोलना चाहता है, वो पूछना चाहता है। जो लोमोव है वो उसको बताता है कि मैं पैसे के लिए नहीं आया हूँ। और जैसे ही चुबुकोव उससे पूछता है कि किस पर्पस से तुम यहाँ आए हो, तो वो उसको बताना चाहता है कि मैं आपकी लड़की का हाथ, शादी के लिए हाथ मांगने आया हूँ। लेकिन उसी बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो जो क्या होता है, चुबुकोव जो होता है वो बड़े एक्साइटमेंट से भर जाता है और अपनी बेटी को बुलाता है। लोमोव जो है यहाँ पे जो कैरेक्टर है, जो यंग कैरेक्टर, वो 35 ईयर ओल्ड है और जो कि पाल्पिटेशन से एक इट इज़ अ काइंड ऑफ नॉट सीवियर, माइनर डिजीज़। तो वो पाल्पिटेशन जो होता है इट इज़ नॉट एक्चुअली डिजीज़। जैसे ही वो जो चुबुकोव अपनी बेटी को बुलाता है और जो लोमोव है 35 ईयर्स ओल्ड यंग जेंटलमैन है, उसको घबराहट होने लगती है और बहुत जल्दी वो क्या हो जाता है, अपसेट हो जाता है। उसको एक इसको घबराहट, एक बीमारी भी कह सकते हैं कि उसके अंदर घबराहट की बीमारी है और वो बहुत बहुत जल्दी अपसेट होता है। उसके अंदर एक डिस्क्वालिटी है जो कि बहुत जल्दी वो अपसेट होता है और जब वो अपसेट होता है, घबराहट होती है, तो उसको नींद आना बंद हो जाता है। और वो अपने बारे में, अब उसके अंदर ये क्वालिटी रहती है कि वो क्योंकि वो 35 ईयर्स का हो चुका है तो उसको अपनी शादी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। वो चाहता है कि अपना जल्दी से शादी कर ले, अपनी फैमिली सेट कर ले और उसके माइंड में सिर्फ जो उस नेबर की लड़की है जिसका नाम है नटालिया, उसके बारे में ही वो दिन भर सोचता रहता है। और उसके अकॉर्डिंग मीन्स जो लोमोव है उसके अकॉर्डिंग नटालिया जो है वो एवरेज है, लुकिंग है और अच्छी हाउसवाइफ हो सकती है, हाउसकीपर है। ऐसा कौन सोचता है, लोमोव सोचता है कि एवरेज लुकिंग है, बहुत अच्छी भी नहीं है और एक अच्छी हाउसकीपर है। और जब नटालिया जैसे ही लोमोव के सामने आती है, उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन शुरू होता है, नॉर्मल कन्वर्सेशंस शुरू होता है और फैमिलीज़ के टर्म्स शुरू होते हैं, बातचीत शुरू होती है। मतलब अब दोनों पड़ोसी एक दूसरे से बात करने लगते हैं, मिलने लगते हैं। इसी बीच में जब बात शुरू हो जाती है तो इसी बीच में उनके बीच में ये बैल के मेड़े का जो वो रहता है, उसके बीच में प्रॉपर्टी
क्योंकि ये बैलों का जो मेड़ा है उसका डिस्कशन इशू ये है कि वो अपोजिट, यानी या तो वो लोमोव की प्रॉपर्टी पे है वो मेड़ा या फिर चुबुकोव की प्रॉपर्टी पे है। अगर वो मेड़ा लोमोव के का मेड़ा है तो वो किसकी प्रॉपर्टी में है, चुबुकोव के एरिया में शायद वो मेड़ा है, और अगर वो मेड़ा चुबुकोव का है तो वो शायद लोमोव की ज़मीन पे वो बना हुआ है। इस बीच में बहस शुरू होती है, और जब दोनों के बीच में बातें शुरू होती, डिस्कशन मतलब जो डिस्कशन शुरू होता है दोनों फैमिलीज़ के बीच में, पहले नॉर्मल डिस्कशंस होता है, और जैसे ही जो चुबुकोव है, नटालिया का फादर, जिससे लोमोव उसका हाथ मांगने शादी के लिए गया, वो जैसे ही इस बातचीत में एंटर करता है, ये नॉर्मल डिस्कशन आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है और दोनों फैमिली एक दूसरे के ऊपर क्या होने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं ज़ोर ज़ोर से। और जो लोमोव की जो फैमिली है वो कंटिन्यूअसली उस लोमोव को चिल्लाती है कि तुमने इनसे दोस्ती शुरू की है और ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। और जब बात बिगड़ने लगती है, इसी बीच में जो लोमोव है वो ये प्रपोज़ल रखना भूल जाता है। तो क्या होता है कि जब वो भूल जाता है तो बाद में, क्योंकि माहौल बिगड़ गया, दोनों पड़ोसियों के बीच में अब रिश्ता खराब हो चुका था, तो लोमोव को बड़ा अफसोस होता है कि काश उसने पहले ही क्या कर देता, ये प्रपोज़ल रख देता, बहस होने से पहले ही ये प्रपोज़ल रख देता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है और उसको बहुत अफसोस होता है। और लास्ट में इसमें क्या होता है, इवन देन द कर्सिंग कंटिन्यूज व्हेन सडनली नटालिया नोटिसेस दैट ही इज अनकॉन्शियस। अब जब बहस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब लड़ाई में बदल जाता है, तो देखा जाता है कि जो नटालिया है, जो लड़की है, वो अचानक से क्या हो गई, बेहोश हो गई। और वो लोग पूरी फैमिली उसको देखने में लग जाती है। कोई लोग पानी पिलाते हैं, कोई कुछ करते हैं, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता है। लेकिन जैसे ही लोमोव थोड़ा आगे बढ़ता है और उसको, जैसे ही लोमोव ने नटालिया को पानी पिलाया, तो क्या होता है, पिलाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो चुबुकोव जो होता है वो बहुत फोर्स करके नटालिया से जो लोमोव है उससे पानी छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जैसे उसने 2-3 बूंद पानी पिलाया तो नटालिया जो होती है वो उसके हाथ को पकड़ लेती है, किसके, लोमोव के हाथ को। और जब वहाँ पे लोग ये देखते हैं, दोनों फैमिली देखती है, तो बड़े खुश हो जाते हैं कि वो ये मान लेते हैं कि दे बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, और वो दोनों फैमिली उनकी शादी के लिए तैयार हो जाती है और फिर उनकी शादी हो जाती है। लेकिन फिर भी इन दोनों फैमिलीज़ के बीच की जो ये प्रॉपर्टी और ऑक्सन मीडोज़ के लिए जो लड़ाई रहती है वो कंटिन्यू चलती रहती है। तो दिस इज़ ऑल इन दिस चैप्टर। इस जो प्ले है, 1 एक्ट प्ले है, उसमें इतना ही है, यही समरी है। और इस प्ले को आप लोग एक बार पढ़िएगा, एक बार रीड कीजिएगा, और रीड भी ऐसे करना है जैसे आप ऑडियंस हैं और स्टेज पे क्या हो रहा है, जो एक्ट है वो चल रहा है, ऐसा फील करके पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर, एंड आफ्टर रीडिंग इट, इफ you are facing any problem, you can ask to me, and I will explain you each and every line. Okay, till then, take care and have a nice day.